to gather members of the legal fraternity towards sharing of thoughts and views on enhancing justice is a valuable attempt. Every day and every motion in the landscape of justice concerns us deeply. Knowing contemporary issues, contemporary justice demands, and moving towards future justice needs will be the deliberations in the event. Science is a gift so valuable, wonderful. Its progeny, technology, is our second soul. Despite these gifts, we do keep exploring and plunging into newer avenues of being fair to each other in all our transactions. The galloping speed of movements and motions across the globe, the hitherto unthought of creation and exchanges of resources, human and natural, the yearnings for liberty and fulfillment by those in want and deprivation on the one hand, and the old world notions of divisions and hegemony with their unrelenting grips on human minds on the other hand, or in conflict. Colonization of places may have gone. Colonization of minds and resources continue to be a challenge. War and national muscle powers seem to take new avatars. Justice demands, both domestic and global, thus call for unceasing engagements. We are indeed pushed to debate about global law for global issues only because we are still a divided globe, though with the United Nations. No person ever steps into the same river twice, for it is not the same river and it is not the same person, said Heraclitus long ago. And the same is true of justice. We tend and yearn to make changes in our social orders and the ways of life. Every brick we pick up and every mortar we add in this pursuit brings new questions and new signposts. We need to incentivize new creations of intellectual property in order that all humanity derives its benefit on equal measure. For after all, if liberty and creativity die, what is left of our existence? The conference seeks to open up our earnest minds to emerging facets of our engagement with the new frontiers of intellectual property and of science and technology, and even the harmful creations of the mind which seem to defy regulations. The conference invites us to talk about what artificial intelligence and the legal landscape. We should not confine ourselves to what Richard Susskind writes about the artificial intelligence and its benefits, or challenges in the world practice of law and justice administration, though that would be immediately important. It is proper that we begin to talk about several battles and concerns arising out of the thought machines that we call artificial intelligence. These battles include the battle for power in the new world. The conference asked us to discuss access to justice and alternate dispute resolution. Both are intertwined. We have long ago left behind the idea of legal aid as mere court assistance. We must designate aid in legal resolution as justice assistance, as a social empowerment, and as tools of social peace. As much as the state invests in this, so much it reaps by promotion of social justice and peace. Social media is borderless world of communications. It enables hugely and connects the world, but distorts, it disregards ethical or moral demands. It is an ever-hungry field and seeks partisan ends. We need to talk about its impacts on justice delivery and how it can bear invidious pressure on justice delivery and why its contours demand regulation in order that undue persuasions do not enter or deflect our objectivity. In the midst of the slippery slopes of challenges and the uncharted seas of questions, we are called upon to shape the future of legal education by its fundamental transformation into justice education and building sustainable legal profession, which must satisfy
gender equality, diversity, and elimination of monopoly with the creamy layers of the community as it obtains today. The conference is the beginning of a new and continuing dialogues. How can concerned minds be addressed in the midst of ever-arising questions of doing justice? I, on behalf of the Bar Council, welcome all of you once again for a fulfilling share of minds. Jai Hind. Thank you so much, Honorable Attorney General for India. अब हमारा अनुरोध है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंडिपेंडेंट चार्ज श्री अर्जुन राम मेघवाल जी आपसे कि आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचार, अपने उद्गार व्यक्त करें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत को विकसित भारत बनाने में जी जान से जुटे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस ऑफ यूके श्री एलेक्स चौक जी, भारत के अटॉर्नी जनरल श्री R. वेंकटरामन जी, भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन मिश्रा जी, उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशगण, समस्त अधिवक्तागण और अन्य सभी उपस्थित विद्वान, श्रोतागण, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित द लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, कॉमनवेल्थ लॉयर एसोसिएशन तथा बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के सहयोग की इस अवसर पर सराहना भी करता हूं और इनको आयोजन के लिए धन्यवाद भी देता हूं। इस आयोजन के लिए जो विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। मेरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में चिंतन, मनन और मंथन की प्रक्रिया से जो सार निकलेगा वो न्याय व्यवस्था के लिए इस अमृत काल में अमृत जैसा सिद्ध होगा। कुछ महत्वपूर्ण विषयों का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं जो 2 दिन की चर्चा के लिए रखे गए हैं। एक्सेस टू जस्टिस एंड लीगल एड इन डेवलपिंग नेशंस, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, alternative dispute resolution in international transactions, artificial intelligence transforming the legal landscape, the changing landscape of criminal law, evolving role of legal professionals institutions, future of legal profession, next generation lawyer। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम सभी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, निवेश जैसे क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी है। विवादों के निपटारे के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की भूमिका को प्रभावी बनाया है। इसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष नेतृत्व और मार्गदर्शन के तहत भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड कॉमर्शियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को और मजबूत करने की दिशा में विभिन्न कदम और उपाय किए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार और निवेशकों का विश्वास बढ़ सके। मैं पिछले 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों को बहुत सार में यहां रखना चाहता हूं। सबसे पहले कॉमर्शियल एक्ट में जो सुधार किया, कॉमर्शियल डिस्प्यूट के तेजी से निपटारे के लिए कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 प्रथम कालखंड में आते ही लागू किया गया, जिसके तहत 2018 से मुकदमों के लिए कंपलसरी प्री एंड इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन की शुरुआत की। ये बहुत बड़ा इंटरवेंशन था कॉमर्शियल एक्ट में। दूसरा जो अमेंडमेंट आया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 96 में आया।
एडीआर को एक विजिबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के रूप में सक्षम करने के लिए इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट में वर्ष 2015, वर्ष 2019, वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए, जिनका उद्देश्य इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को बढ़ावा देना, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस को अपनाना और एम्बिगुइटी को हल करने के साथ साथ आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम स्थापित करना रहा है। मीडिएशन एक्ट, मीडिएशन के संबंध में कोई स्टैंड अलोन कानून नहीं था। मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मीडिएशन एक्ट 2023 में संसद से पास हो गया है। रिफॉर्म फॉर फैसिलिटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग के अनेक प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। बिजनेस के क्षेत्र में कंप्लायंस बर्डन को कम किया गया है और एक स्वस्थ वातावरण देने का सार्थक प्रयास किया गया है। एक्सेस टू जस्टिस एंड लीगल एड इन डेवलपिंग नेशंस, मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि एक्सेस टू जस्टिस एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दैट इंश्योर्स इंडिविजुअल्स कैन सीक एंड ऑब्टेन ए फेयर एंड इम्पार्शियल रिजोल्यूशन टू देयर लीगल डिस्प्यूट्स। न्याय की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करने के लिए टेलीलॉ, ई कोर्ट्स, संसार में अगर हम ई कोर्ट्स के माध्यम से कभी विश्लेषण करेंगे इतिहास, तो कोविड पीरियड में संसार में सबसे ज्यादा भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हुई है। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है। टेलीलॉ, ई कोर्ट जैसी तकनीक योजनाएं शुरू की गई तथा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए न्याय बंधु, न्याय मित्र जैसी प्रो बोनो सुविधाएं प्रदान की जा रही है, क्योंकि न्याय प्रणाली ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस नेमिनी नेगंडा एस्ट मीन्स जस्टिस इज टू बी डिनाइड नोबॉडी, अर्थात किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूं। जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वकीलों के लिए भी लॉयर्स चैम्बर में तेजी आई है पिछले 9-10 सालों में, आपने देखा होगा फील्ड में। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जून 2023 तक कुल 412 विशिष्ट पॉक्सो अदालतें सहित 763 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा कुल 33 लाख से अधिक लंबित मामलों का निपटारा भी किया गया है। जुलाई 2023 तक देश में 785 फैमिली कोर्ट्स कार्यरत हैं। अब तक देश में 422 ग्राम न्यायालय भी हैं। अंत में इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों और प्रतिभागियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यहां जो सार्थक चर्चाएं होगी वे न्याय प्रणाली को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में पथ प्रदर्शक साबित होगी। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के जो एलेक्स चौक, जो हमारे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ जस्टिस है, वो भी आए हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। May I now request Honorable Chief Justice of India Dr. D.Y. Chandrachud to kindly address us। अब भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सभा को संबोधित करेंगे। नमस्कार। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Union Minister for Law and Justice Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Lord Chancellor and Secretary of State for Justice Mr. Alex Chalk, the Learned Attorney General Shri R. Venkatramani, Learned Solicitor General Shri Tushar Mehta, Chairman Bar Council of India Shri Manan Kumar Mishra, Vice Chairperson Bar Council of India Shri S. Prabhakaran, my distinguished colleagues
of the Supreme Court, Chief Justice of the High Courts, judges of the High Courts, all the other distinguished guests this morning. It is a privilege to address this august gathering. At the outset, I applaud the Bar Council of India, the Law Society of England and Wales, the Bar Council of England and Wales, and the Commonwealth Lawyers Association for collaborating in putting together a conference of immense promise and relevance. Each one of us, individually and collectively, have volumes, whether it's now terabytes or gigabytes or petabytes, to learn from different jurisdictions, perspectives, and most importantly, from each other. All we need is the humility to recognize this vast scope to learn and platforms for such an exchange. The aim of the conference to promote what has been eloquently phrased by the organizers as introspective discourse and constructive dialogue is indeed noble. Over the next 2 days, we will witness some of the best minds, including judges from across the globe, my own distinguished colleagues in the Supreme Court and in several high courts, global practitioners and legal scholars discuss the diverse challenges to justice delivery. As the inaugural speaker, however, I believe my task is different. Instead of addressing specific challenges to justice delivery, I seek to present an umbrella framework to address these challenges and find innovative solutions. It is utopian to think that there will be a day when we will find perfect solutions and no challenges to justice delivery. However, it is definitely not utopian to aspire to a world where nations, institutions, and most importantly, individuals are open to engage with and learn from one another without feeling threatened or belittled. It is in this engagement that I believe lies the framework to find mutual solutions. Firstly, engagement between nations, constitutions, and legal systems. What better example than our own beloved Constitution? From the drafting of our Constitution to the adjudication of constitutional questions, India has a rich tradition of engaging with foreign constitutions and precedents. It is often argued, and I tend to agree, that our openness to draw from foreign experiences is rooted in our perception of the Constitution as a transformative document. When a Constitution is perceived as transformative, it is more likely that foreign experiences will be drawn as inspiration of how such transformation is possible on several issues. In a number of my own judgments, and that applies to my colleagues in the Supreme Court, we survey the position of law adopted by international organizations and various national jurisdictions. I have found this to be a worthwhile exercise to not only contextualize answers to constitutional questions, such as public interest immunity claims for non-disclosure, but also commercial law questions like remuneration of arbitrators. India has a relatively infant law, as legal discourse goes, the Insolvency and Bankruptcy Code of 2016. And we have drawn extensively from jurisdictions such as the UK, the US, Australia, Singapore, only to name a few jurisdictions. Knowledge sharing is, of course, a two-way street, with decisions of the Indian Supreme Court being regularly cited and relied upon by foreign courts faced with thorny questions. At the administrative level, too, the Indian judiciary must remain receptive to collaborating with various nations. India has played a pivotal role by constructing the Supreme Court buildings in Mauritius and in Bhutan. Recently, I had the privilege of signing an MOU with the Chief Justice of the Supreme Court of Singapore in the field of judicial cooperation. Chief Justices coming from diverse jurisdictions such as Kenya, the first woman Chief Justice, the Chief Justice of Mauritius, Chief Justice Sundaresh Menon of the Singapore Supreme Court have all collaborated with India and have visited us in the recent past. Indeed, nothing explains this push towards engagement across nations better than the slogan for the recently concluded G20 summit, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is but one family. Let me dwell briefly on institutions.
The next layer of my framework is engagement with institutions within the country. While the Constitution provides for separation of powers between the legislature, the executive, and the judiciary, it also creates a space for institutions to learn from each other and deliver justice. In our tendency to emphasize differences, we often forget the abundant examples of collaboration between institutions to further the interest of justice. This holds true not only in lofty constitutional challenges, but more frequently in the everyday interactions between the courts and government. Back in the 1980s, in the case of Azad Rickshaw Pullers Union versus State of Punjab, the vires of a legislation that mandated rickshaw pullers to be owners of the rickshaws they plied was under challenge before the Supreme Court. Instead of an adversarial approach, the Supreme Court and the government worked together to craft a solution. In his classic flair, a distinguished judge of our court wrote, "The state, by exercising its legislative power alone, could not produce justice until this formula was hammered out. The court, with its process of justice alone, could not produce a viable project. But now justice and power have come together, and hopefully we have fulfilled the words of Blaise Pascal. Justice without power is inefficient. Power without justice may be tyranny. Justice and power must therefore be brought together so that whatever is just may be powerful, and whatever is powerful may be just." I'm sure that the learned Solicitor General and the learned Attorney General present in the audience today will agree that this spirit of collaboration between the court and the government exists even today. I will give just one example. A constitution bench of the Supreme Court is presently hearing a challenge pertaining to whether a person holding a driving license to drive a light motor vehicle can drive a commercial vehicle under the Motor Vehicles Act. Instead of viewing the case as an adversarial challenge, the court and the government are collaborating to protect the livelihood of millions of drivers across the country. We may present disparate institutions, and our constitutional structure may place us at different ends of the table, but our ultimate aim is the same: for the nation to progress and prosper. Institutional collaboration is a precursor to solution finding not only while adjudicating judicial questions, but it also plays a significant role in increasing access to justice. The Supreme Court's E-Committee is not working in isolation, but with constant cooperation with other forms of governmental institutions. Just last week, a meeting of the Union Cabinet chaired by the Honorable Prime Minister approved Phase 3 of the E-Courts project with a financial outlay of over 7,000 crore rupees. Immediately after this function gets over, I'm meeting through to lunch with the entire team of the Department of Justice to now implement the project. The E-Courts program, being implemented collectively by the E-Committee, Supreme Court of India, and the Union Ministry of Law and Justice, is a perfect example of institutions collaborating to make justice more accessible, affordable, and transparent. The third aspect, or the third layer, is what we can do as individuals. The third and final layer of my framework is setting aside our differences and engaging as individuals in the service of the nation. When I think of this idea, it reminds me of the heartwarming friendship between one of my idols, Justice Ruth Bader Ginsburg of the US Supreme Court, and her contemporary Justice Antonin Scalia. Many of you would recall the iconic image of these doyens seated on top of an elephant during their visit to Rajasthan in 1994. Despite their divergent judicial philosophies, they shared an enduring bond rooted in their love for opera, mutual respect for each other's intellect, and a commitment to justice. Just like Justice Ginsburg and Justice Scalia, there is often a variety of viewpoint and perspective between my colleagues and on the bench and me. But that is why we are a national court. However, when the day comes to a close, we come together and share moments of camaraderie. This idea of friendship beyond differences may seem light-hearted. However, it plays a pivotal role in fostering mutual respect for each other's perspectives
and in acknowledging that there is always something to learn from each other. Only when we recognize the shared intention to deliver justice can we sit on the same table and find solutions. The drafting of the Constitution by the Constituent Assembly is also a classic example of engaging beyond partisan lines. Individuals from different regions of India, diverse backgrounds, and even conflicting ideologies came together to draft the Constitution in one voice. In his last speech before the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar articulately said, "The task of the drafting committee would have been a very difficult one if this Constituent Assembly had been merely a motley crowd, a tessellated pavement without cement, a black stone here and a white stone there, is which each member or each group was a law unto itself." We find the same bipartisan effort, and this is something to which we as citizens of India must be proud, has gone into the passing of the Women's Reservation Bill recently in Parliament. The making of our Constitution is indeed a perfect encapsulation of the framework that I have proposed today. Before I conclude, in the spirit of this being an international lawyers' conference, I would like to highlight that while the judiciary definitely bears the responsibility to administer justice and uphold the rule of law, my friends at the bar, you play an equally vital role in an era characterized by ever-increasing globalization. The role of lawyers has evolved to address myriad global legal challenges. The rapid advancement of technology has created complex legal issues, with lawyers leading the way in navigating this landscape. They ensure clients and governments adapt to tech changes while upholding legal rights and regulations, covering areas like cybersecurity, data privacy, and intellectual property. Lawyers also bear significant commercial responsibility, driving economic growth by helping clients and governments enhance business efficiency and cross-border operations. Through their role in facilitating international trade, investments, and collaborations, they contribute to our nation's economic well-being and global cooperation. Just as Indian industry has radically altered its footprints from 1980 or earlier, by now reaching out across the world, I believe it's time for our lawyers to reach across the world in a global landscape. The government is in the process of creating infrastructure. There is a global outreach by the government to the rest of the world. I believe that our legal profession must not be left behind. We cannot look upon ourselves as merely domestic practitioners. Our reach, our vision, our outlook must now become global. While none of us have a magic wand to wish away the challenges to justice delivery, I am certain that the sessions lined up over the next 2 days will inspire each of us to collaborate as nations, institutions, and individuals to find innovative solutions. With that, I come to the end of my address. I thank you for your attention. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय। लोक हृदय में पूजित प्रतिष्ठित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी श्वासों में भारत का स्वाभिमान स्पंदित होता है, जिन्होंने भारत की संस्कृति विश्व एक परिवार है को इन 9 सालों में भारत के नाम के साथ ऐसा गढ़ा कि पूरे विश्व में इस सोच का अभिनंदन है, इस संस्कृति का वंदन है। May I request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address us. भारत के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, केंद्रीय कानून मंत्री मेरे साथी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, यूके के लॉर्ड चांसलर मिस्टर एलेक्स शॉक,
अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी माननीय जजेस, बार काउंसिल के चेयरमैन और सदस्य, विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधिगण, राज्यों से आए प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, दुनिया भर की लीगल फ्रेटर्निटी के दिग्गज लोगों को मिलना, उनके दर्शन करना, ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आज उपस्थित हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड और बार एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के डेलीगेट्स भी हमारे बीच हैं। इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। एक तरह से इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस वसुधैव कुटुंबकम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी इंटरनेशनल गेस्ट का मैं भारत में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, जो बखूबी से इस आयोजन का दायित्व निभा रही है। साथियों, किसी भी देश के निर्माण में वहां की लीगल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। हमारे जो विदेशी मेहमान यहां हैं, उन्हें मैं एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूं। कुछ ही समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में अनेकों वकीलों ने चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो, वीर सावरकर हो, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे। यानी लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव के ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया। और आज जब भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है, उसमें भी भारत की निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया।
नारी शक्ति वंदन कानून भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट की नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। कुछ ही दिनों पहले ही G20 के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ऐसी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भरा भारत आज 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत, निष्पक्ष, स्वतंत्र, न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए। मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से काफी कुछ सीख सकेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो बॉर्डर्स या जुरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। साइबर टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो, ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा। जैसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मिलकर काम करते हैं। कोई देश ये नहीं कहता तुम्हारा कानून तुम्हारे यहां, मेरा कानून मेरे यहां। जी नहीं, फिर किसी का जहाज उतरेगा ही नहीं। हर कोई कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स का पालन करता है। उसी तरह हमें अलग अलग डोमेन में ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में अवश्य मंथन करना चाहिए, दुनिया को नई दिशा देनी चाहिए। साथियों, एक अहम विषय ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर का है। तुषार जी ने इसका काफी वर्णन भी किया। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी के साथ दुनिया भर में एडीआर का चलन भी तेजी से बढ़ा है। मुझे बताया गया है इस कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर भी विस्तार से बात होने वाली है। भारत में तो सदियों से पंचायत के जरिए विवादों के निपटारे की व्यवस्था रही है, हमारे संस्कार में रहा है। इस इनफॉर्मल व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए भी भारत सरकार ने मीडिएशन एक्ट बनाया है। भारत में
लोक अदालत की व्यवस्था भी विवादों को हल करने की दिशा में बड़ा माध्यम है। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो एवरेज एक मामला का न्याय होने तक सिर्फ 35 पैसे का खर्च होता था, 35 पैसे। यानी ये व्यवस्था हमारे देश में होती है। पिछले 6 साल में करीब 7 लाख केसेस को लोक अदालतों में सुलझाया गया है। साथियों, जस्टिस डिलीवरी का एक और बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है, वो है भाषा और कानून की सरलता। अब हम भारत सरकार में भी सोच रहे हैं कि कानून 2 प्रकार से प्रस्तुत किए जाए। एक, जिस भाषा पे आप लोग के आदी हैं वो वाला ड्राफ्ट होगा, और दूसरा देश का सामान्य मानवी समझ सके ऐसी भाषा। उसको कानून भी अपना लगना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी सिस्टम भी उसी ढांचे में पली बड़ी है तो उसको बाहर निकालते निकालते, लेकिन हो सकता है कि अभी मुझे काफी काम है, मेरे पास समय भी बहुत है, तो मैं करता रहूंगा। कानून किस भाषा में लिखे जा रहे हैं, अदालती कार्यवाही की भाषा में हो रही है, ये बात न्याय सुनिश्चित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहले किसी भी लॉ के ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी। सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून, जैसा मैंने आपको कहा, 2 प्रकार से, और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा सके, उस दिशा में हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ आपने देखा होगा, उसमें ये सिंप्लीफिकेशन का हमने एक पहली शुरुआत की है, और मैं पक्का मानता हूं कि सामान्य व्यक्ति को उस परिभाषा से सुविधा रहेगी। भारत की न्याय व्यवस्था में मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और मैं चंद्रचूड़ जी का पब्लिकली मैंने एक बार अभिनंदन किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो लिटिगेंट है उसकी भाषा में हम उपलब्ध कराएंगे। देखिए, इतने से काम में 75 साल लग गए, और ऐसे के लिए, इसके लिए भी मुझे आना पड़ा। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की व्यवस्था की है। इससे भी भारत के सामान्य व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी। कोई पेशेंट हो ना, अगर डॉक्टर भी पेशेंट की भाषा में उससे बात करे तो आधी बीमारी यूं ही ठीक हो जाती है। बस यहां ये मामला बाकी है। साथियों, हम टेक्नोलॉजी से, रिफॉर्म से, न्यू जुडिशियल प्रैक्टिसेस से कानूनी प्रक्रिया को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इस पर निरंतर काम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने जुडिशरी सिस्टम के सामने बड़े एवेन्यूज बना दिए हैं। थोड़े से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ही हमारे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट
और कॉमर्स सेक्टर को बहुत बड़ा बूम दिया है। ऐसे में लीगल प्रोफेशनल से जुड़े लोगों को भी इस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से ज्यादा जुड़ना होगा। मैं आशा करता हूं कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस न्यायिक व्यवस्थाओं के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मैं इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस सफल कार्यक्रम के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आपकी अति गरिमामय उपस्थिति तथा प्रेरणा से भरे हुए संबोधन के लिए आपका हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। थैंक यू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। माननीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आपका भी धन्यवाद पधारने के लिए। आई थैंक ऑल द एस्टीम्ड डिग्निटरीज ऑन द डेस्क फॉर देयर प्रेजेंस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। May I request you all to kindly remain at your respective places. तो आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कहीं। अगर कुछ मोटी बातों पर नज़र डालें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि लीगल जो फ्रेटर्निटी होती है किसी भी देश की, अगर भारत की ही बात कर ली जाए तो उस देश के निर्माण में, उसके विकास गाथा में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है पूरे लीगल फ्रेटर्निटी। उन्होंने ये भी कहा कि आप भारत के इतिहास को देख लीजिए तो हमारा जो भारतीय इतिहास रहा है स्वतंत्रता by step method and precautions to be followed by each member in casting their votes. Step 1, I will announce that the voting process will start now. Step 2, the voting process starts and ends with a gong on a large screen hall display in the two corners of the chamber. The countdown time of 10 seconds in reverse counting order will be visible to the members on their respective multimedia devices. Members can cast their votes by pressing the Vote Secure button available on the bottom left-hand corner of their devices and keeping it pressed, simultaneously press one of the yes, no, abstain buttons of his or her choice. For easy identification, these voting buttons have been indicated on your devices as green for yes, red for no, yellow for abstain. A word of caution here, the Vote Secure button should be pressed only after the gong sound. I repeat, only after the gong sound. Step 4, each member must keep the Vote Secure button as well as one of those yes, no, abstain buttons pressed simultaneously for 10 seconds, that is, at the time of closing of voting to register a valid vote. Step 5, once the valid vote is registered, the LED of voting button pressed by the member will remain on, lighted up on their devices. At the time of casting the vote, if the members observe that the LED of yes, no, and abstain buttons are simultaneously blinking, it means that their vote is not being registered. Therefore, they shall immediately release the voting button pressed by them without releasing the Vote Secure button and have to press again within the 10-second period to register a valid vote. Step 6, during the voting period, the member can change his or her vote at any time. The button pressed at the time when the voting period is ending, that is, at the 10th second, will be recorded. In case either one or both the buttons are released prior to the close of the voting period, the vote will not be registered.
If a member finds that he or she has voted by mistake by pressing the wrong button, he or she can be allowed to correct the mistake through a correction slip devised for the purpose, provided he or she brings it to the notice of the chairman before the result of the division is announced. The correction slips will be distributed to the honorable members who desire to correct their recorded vote by the officials of the Secretariat. Yes. I will. The Secretary General may now explain voting procedure in Hindi. माननीय सदस्यगण, आपकी सुविधा के लिए मैं स्वचालित मतांकन प्रणाली द्वारा मतदान प्रक्रिया समझाऊंगा। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक सदस्य की मेज पर एक मल्टीमीडिया डिवाइस एमएमडी लगाया गया है। इस एमएमडी में इंटीग्रेटेड माइक और वोटिंग कंसोल लगे हैं, जिसके दाईं और कोने में 3 बटन हैं, हाँ के लिए यस, ना के लिए नो और एब्सटेन। इस मल्टीमीडिया उपकरण एमएमडी के निचले बाएं कोने पर अलग से एक बटन वोट सिक्योर भी दिया गया है। सदस्यों की और सुविधा हेतु मैं अब प्रत्येक सदस्य द्वारा अपना मत डालते समय अनुसरण की जाने वाली विधियों और सावधानियों को 4 चरणवार समझाऊंगा। चरण 1, मैं घोषणा करूंगा कि मतदान प्रक्रिया अब शुरू होगी। चरण 2, मतदान प्रक्रिया सभा कक्ष के दोनों कोनों में लगे बड़े स्क्रीन हॉल डिस्प्ले पर गोंग ध्वनि से शुरू होगी और समाप्त होगी। उल्टी गिनती के क्रम में 10 सेकंड की उल्टी गिनती का समय सदस्यों को उनके मल्टीमीडिया उपकरणों पर दिखाई देगा। चरण 3, सदस्य वोट सिक्योर बटन अपने उपकरण के निचले बाएं कोने में उपलब्ध है को दबाकर और उसे दबाते हुए अपनी पसंद के यस, नो, एब्सटेन बटन में किसी एक बटन को भी एक साथ दबाकर अपना मतदान कर सकते हैं। आसानी से पहचान में आने के लिए आपके उपकरणों पर इन मतदान बटनों को यस हरे, नो लाल और एब्सटेन पीले रंग में प्रदर्शित किया गया है। वोट सुरक्षित बटन को गोंग ध्वनि के बाद ही दबाया जाना चाहिए। मैं रिपीट करना चाहूँगा, गोंग ध्वनि के बाद में ही वोट सुरक्षित बटन को कृपया दबाएं। चरण 4, वैध मत दर्ज करने के लिए प्रत्येक सदस्य को वोट सिक्योर बटन के साथ यस, नो, एब्सटेन बटन में से एक को 10 सेकंड अर्थात मतदान बंद होने के समय तक के लिए एक साथ दबाए रखना होगा। चरण 5, एक बार वैध मत दर्ज हो जाने के पश्चात सदस्य द्वारा दबाए गए बटन की एलईडी उनके उपकरण पर जलती रहेगी। मतदान करते समय यदि सदस्य यह पाते हैं कि यस, नो, एब्सटेन बटन की एलईडी एक साथ ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब है कि उनका मत दर्ज नहीं हो रहा है। इसलिए वे स्वयं द्वारा दबाए गए मतदान बटन को तुरंत छोड़ दें, वोट सिक्योर बटन को छोड़े बिना, और तत्पश्चात वैध मत दर्ज करने के लिए 10 सेकंड की अवधि में पुनः बटन को दबाएं। चरण 6, मतदान अवधि के दौरान सदस्य किसी समय अपना मत बदल सकते हैं। मतदान की अवधि समाप्त होने के समय अर्थात 10वें सेकंड में दबा कर रखे गए बटन का मत ही दर्ज होगा। यदि मतदान अवधि समाप्त होने से पहले कोई एक या दोनों बटन छोड़ दिए जाते हैं तो मत दर्ज नहीं होगा। यदि किसी सदस्य को पता चलता है कि उन्होंने गलती से गलत बटन दबाकर मतदान कर दिया है, तो उन्हें गलती सुधारने के उद्देश्य से तैयार की गई सुधार पर्ची के माध्यम से गलती को सुधारने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु इसके लिए उन्हें मत विभाजन का परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व इसे सभापति के ध्यान में लाना होगा। अपने दर्ज मत को सही करने के इच्छुक मान्य सदस्यों को सुधार पर्चियां सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा वितरित की जाएंगी। Honorable members, I would like to inform you that as we are doing voting electronically, honorable members would have to be seated in their respective seats. Honorable members from Lok Sabha
may like to occupy the vacant seats indicated so on the multimedia device. Alternatively, they may sit in the space between the two seats. The question is that the bill further to amend the Constitution of India as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Division. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. इधर विजय हाँ हाँ वो दे रहे हैं सर, दे रहे हैं। कुछ मेंबर्स का रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड रख लेना ना, 171 याद रख लेना क्योंकि ऐड करने पड़ेंगे इसमें। फर्स्ट वोटिंग लिख दीजिए ऊपर, फर्स्ट वोटिंग लिख दीजिए ऊपर पेंसिल से। दीपक, ये फ्रंट रो पूरा नहीं हुआ है, जरा देखो जरा। सीट नंबर से देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए।
नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इधर दे। सर इनका इंटरनेशनल कुछ ये है
my house. I was his guardian in Mayo College. And that is why I was harsh to him. Otherwise, a very senior person. Honorable members, subject to correction, ayes 215. Noes 0. Abstention 0. The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. A historic achievement. Congratulations. Honorable members, it is only a coincidence. मन कंचन है, यह संयोग ऐसा है, हिंदू रीति विधि के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है। मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूं। We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 9 amendments. Would the honorable members like to move them? All right, all right. Clause 2 stands part of the bill. 9 amendments. Shri Santosh Kumar P., are you moving the amendment? Moving. Dr. John Britas? Yes, sir, I am moving. Number 19. Shri Binoy Vishwam? Are you moving or not? Moving. I am moving. Numbers 48 to 52 by Professor Manoj Kumar Jha. Moving. Number 65 by Professor Ram Gopal Yadav. Moving, sir. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Shri Santosh Kumar P to vote. Who's?
No, there is no listed amendment. Mr. Jairam Ramesh, I have to go by those amendments which have been legally admitted, and therefore to make an issue at such a solemn occasion is not appropriate. Otherwise, we can continue making all kinds of interventions. Okay. I shall first put the amendments moved by Shri Santosh Kumar P to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, noes have it, noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Binoy Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Professor Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendment moved by Professor Ram Gopal Yadav to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. नोज भी दबाया किसी ने Be appropriate. Those who need slips may raise their hands. Yes. लास्ट वाले वोटिंग
ये सीधी तस्वीरें राज्यसभा से, जहां पर भारत के संसदीय लोकतंत्र में इतिहास रचा जा रहा है। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पर मतदान जारी है। लोकसभा में 454 मतों के प्रचंड बहुमत से कल ये पारित हुआ था। विरोध में महज 2 वोट पड़े थे और आज ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पुरस्कृत किया गया और दिन भर हुई विशद चर्चा के बाद अब इस समय मतदान की प्रक्रिया जारी है। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पर संविधान संशोधन विधेयक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 368 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सदस्य या फिर मंत्री कोई विधेयक किसी भी सदन में पुरस्कृत कर सकता है और अगर ये संविधान से संशोधन का विधेयक है, ये विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। विशेष बहुमत का अर्थ ये होता है कि समस्त सदस्यों की सदस्य संख्या से अधिक, यानी बहुमत, सदस्य संख्या का बहुमत और प्रस्तुत या मौजूद उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत, यानी जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 संख्या के द्वारा और समस्त सदस्यों की संख्या के आधे के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है, लिहाजा इसके लिए ये दोनों प्रक्रिया संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है और संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण यह ध्वनिमत से नहीं पारित किया जा सकता है। यह संवैधानिक बाध्यता है कि इस पर मतदान होना आवश्यक है। ये संवैधानिक बाध्यता है और उसी संवैधानिक उपबंधों के तहत इस समय राज्यसभा में वोटिंग प्रक्रिया जारी है, मतदान की प्रक्रिया जारी है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पर, जो कि लोकसभा में कल पारित किया जा चुका है। सब्जेक्ट टू करेक्शन 215 मत पड़े हैं। संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार करने के लिए सभा में मतदान के लिए स्वीकार करने के लिए अभी इसके बाद क्लास बाय क्लास एक उपबंधों पर मतदान होगा। वो प्रक्रिया लगातार जारी है। सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वो संशोधन ला सकते हैं। अनेक माननीय सदस्यों द्वारा संशोधन लाया गया, जिसकी सूचना सदन को सभापति द्वारा दी गई। ध्वनिमत से इन संशोधनों को खारिज कर दिया गया है। संशोधनों पर भी मतदान की प्रक्रिया संवैधानिक बाध्यता है और प्रक्रिया के तहत हर एक उपबंध पर सदन में मत विभाजन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं, उच्च सदन में राज्यसभा में मौजूद हैं। उन्होंने आभार व्यक्त किया, अभिनंदन किया, आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा का प्रदर्शन किया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बेहद महत्वपूर्ण मामले पर सबने एकजुटता दिखाई है, जो कि देश के अच्छे उज्जवल भविष्य की गारंटी भी देता है। उन्होंने उच्च सदन में सभी दलों के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। सभापति जगदीप धनखड़ इस समय सदस्यों के संशोधनों के बाद मतदान प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्लास बाय क्लास जो अलग अलग उपबंध है, इस संविधान संशोधन विधेयक में 6 उपबंध हैं, उन सभी 6 उपबंधों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और जो माननीय सदस्यों द्वारा लाए गए हैं संशोधन प्रस्तुत विधेयक के संदर्भ में जो संशोधन लाए गए हैं वो ध्वनिमत से खारिज कर दिए गए हैं। सब्जेक्ट टू करेक्शन एडॉप्शन फॉर द बिल 215 रहा और सबसे अच्छी बात ये रही कि न ही शून्य रहा इसका विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा और कोई भी सदस्य अनुपस्थित नहीं, अब्सटेन भी 0 है, नो भी 0 है और यस 215 है। संविधान का अनुच्छेद 368 ये बताता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उसमें विशद वर्णन किया गया है और विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाता है। कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पुरस्थापित किया जा सकता है, किसी भी सदन में किसी भी सदस्य या फिर संबंधित मंत्री द्वारा पुरस्थापित किया जा सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने इसे कल लोकसभा में पुरस्थापित किया, जहां पर यह 494 2 मतों के मुकाबले 2 मत विरोध में पड़े और 454 मत पक्ष में पड़े। 454 मतों से ये प्रचंड बहुमत से पारित होकर राज्यसभा में पहुंचा, जहां विशद व्यापक विस्तार से हुई चर्चा के बाद सर्वानुमति देखने को मिली। Subject to correction, I am happy to announce
Ayes 214. Noes 0. Abstention 0. Clause 2 is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. We'll find out. And that is why it's subject to correction. But that missing vote may raise the hand if he likes. Clause 3 stands part of the bill. Honorable members, there are 13 amendments. Number 3 by Sri Santosh Kumar P. Are you moving, sir? Moving. Number 12 by Shri Abdul Wahab. Moving. Number 13 by Shri Dipender Singh Huda. सर ये ओबीसी के लिए हम मूव कर रहे हैं ओबीसी का Are you moving or not? सर ओबीसी का होना चाहिए उसके लिए Are मूव you कर रहे हैं moving or not? moving. Good, very good. Number 20 to 24 by Dr. John Bitas. Moving. Moving, sir. Number 32 by Shri K.C. Venugopal. And we Are are you demanding moving? OBC also. Are So you I am moving? moving my amendment. Are you moving? Okay, very good. Number 37 by Shri Binoy Viswam. Are you moving? Are you moving? Okay. Numbers 53 and 54 by Professor Manoj Kumar Jha. Moving. Yeah, I'm moving. Number 66 by Professor Ram Gopal Yadav. Moving. Yes, sir. Amendments moved. I shall first put the amendments moved by Shri Santosh Kumar P to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Abdul Wahab to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Dipender Singh Huda to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Dr. John Bitas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendments moved by Shri K.C. Venugopal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Binoy Viswam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Professor Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendment moved by Professor Ram Gopal Yadav to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division, lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now.
The voting time starts now. राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर मत विभाजन की प्रक्रिया जारी है। क्लॉज बाय क्लॉज इस विधेयक के उपबंधों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले मोशन को अडॉप्ट करने के लिए, विधेयक को अडॉप्ट करने के लिए एक जो मत विभाजन हुआ था उसमें सब्जेक्ट टू करेक्शन 215 और किसी भी सदस्य द्वारा असहमति नहीं जताई गई थी। विधेयक के उपबंध 2 को क्लास 2 को अडॉप्ट कर लिया गया है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% आरक्षण का उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है। ये पूरा संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करेगा। विधेयक के उपबंध 2 में इसका प्रावधान किया गया है और उपबंध 2 इससे पहले 214 मतों से सर्वानुमति से विपक्ष में किसी भी मत न होने की वजह से, किसी भी सदस्य के अनुपस्थित न रहने की वजह से 0 अब्स्टेन, 0 नो और 214 मत जो कि सब्जेक्ट टू करेक्शन है, क्लास 2 अडॉप्ट कर लिया गया। और अब विधेयक का तीसरा खंड उपबंध जो कि अनुच्छेद 330 ए को जोड़ेगा और ये लोकसभा में 33% महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था करता है। संशोधन विधेयक के बाद संविधान के अनुच्छेद 330 में एक नया अनुच्छेद 330 ए जोड़ा जाएगा और इसके 3 पार्ट होंगे जो कि लोकसभा में हाउस ऑफ द पीपुल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के उपबंध 3 पर इस समय मतदान की प्रक्रिया जारी है, मत विभाजन की प्रक्रिया जारी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वानुमति दिख रही है। दलगत राजनीति से इतर सभी राजनीतिक दल इस बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक पर आम सहमति है सदन में। विपक्ष में एक भी मत का न पड़ना स्पष्ट तरीके से बताता है कि सभी दलों की सर्वानुमति है। संवैधानिक बाध्यता है मत विभाजन की, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक है, ध्वनिमत से यह पारित नहीं किया जा सकता है। इसके पहले अनेक सदस्यों द्वारा जो संशोधन लाए गए थे, विधेयक में संबंधित जो संशोधन लाए गए थे, वो ध्वनिमत से खारिज कर दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं। ऋषि, अगर देखें तो जिस तरीके से जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत लगातार मोदी जी मत विभाजन की प्रक्रिया हम देख रहे हैं राज्यसभा में उच्च सदन में चल रही है। संशोधन विधेयक का उपबंध 2 अडॉप्ट किया जा चुका है। उपबंध 3 जो कि आर्टिकल 330 में संशोधन की बात करता है और अब हाउस ऑफ पीपुल में आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके बाद आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 इनको भी अडॉप्ट किया जाना है। किस रूप में देखते हैं पूरा का पूरा ये सर्वानुमति का माहौल, अपने में ऐतिहासिक, अपने में अभूतपूर्व, अद्वितीय, क्योंकि कोई भी दल मत विभाजन में विपक्ष में खड़ा इस उच्च सदन में नहीं दिख रहा है। भले ही लोकसभा में मात्र 2 लोग दिखे, लेकिन उच्च सदन अपने संवैधानिक मूल्यों को और उच्चता प्रदान करते हुए दिख रहा है। ऋषि, देखिए सुनील, जहाँ तक इस समय राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक की जो बात करें तो नारी शक्ति वंदन विधेयक पर इस समय जो वोटिंग जारी है, इसको लेकर अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि राज्यसभा में 215 वोट इसके समर्थन में आ चुके हैं और इसके विरोध में एक भी वोट नहीं है और एब्स्टेंट एक भी वोट नहीं है। ये पहला जो आंकड़ा बताता है कि राज्यसभा में तकरीबन सर्वसम्मति बन चुकी है। और अभी जो क्लॉज बाय क्लॉज जो वोटिंग चल रही है, जैसे हमने देखा कि अभी सेकंड क्लॉज को पारित किया गया 214 वोट से, और इसमें भी एक भी मत जो है विरोध में नहीं था। और इस समय क्लॉज 3 चल रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण क्लॉज है अश्विनी, और इसमें देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के सांसद क्या इसके वोटिंग के समय इसके विरोध में जाते हैं या सिर्फ वो अपनी सांकेतिक रूप से इस चीज को शामिल करने के लिए एक जो उन्होंने अमेंडमेंट पेश किया है उसको लेकर जाते हैं। क्योंकि ये क्लॉज इस आरक्षण में जो ओबीसी आरक्षण है उसको शामिल करने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया गया है। 13
सांसदों ने ये अमेंडमेंट मूव किया है और इस पर हम जानते हैं इस समय वोटिंग चल रही है। और जो अभी शुरुआत में हमने जो स्क्रीन को देखा था, उस स्क्रीन में जो स्थिति दिखाई दे रही थी, हालांकि अभी कहना बहुत मुश्किल है और ये परिणाम किसी भी वक्त आ सकता है, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई विरोध बहुत बड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। एक वोट इसके विरोध में दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी जो सांसद हैं वो इस वोटिंग प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उनके पास अवसर होता है लास्ट समय तक का और अपना मत का वो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो अब जो स्थिति बनेगी, उस स्थिति के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस क्लॉज के बाद, क्योंकि इस क्लॉज को लेकर खासतौर से विपक्ष जो है सुबह से ही चर्चा में इस बात को उल्लेख कर रहा था कि जो ओबीसी आरक्षण है उसको इसमें शामिल किया जाए। और इस क्लॉज के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब जो आने वाले समय में जो अग्नि क्लॉज हैं वो किस रूप में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राज्यसभा से विधेयक पारित होना है ये तो बिल्कुल तय हो चुका है, लेकिन क्या इसमें कोई संशोधन के साथ पारित होता है ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। और इसी स्पष्टता के लिए ये वोटिंग चल रही है और अभी तक हम देख चुके हैं कि सेकंड क्लॉज को पूरी की पूरी सहमति के साथ उसको सर्वसम्मति से एक्सेप्ट किया गया है। और हालांकि इसमें विरोध में और एब्सेंट में कोई वोट नहीं है, एक वोट मिसिंग है, जो कि चेयरमैन ने कहा कि हम इसको चेक करेंगे, लेकिन इसी वजह से इसको सब्जेक्ट टू करेक्शन बोला जाता है। तो इसलिए जो अमेंडमेंट अब तक एक अमेंडमेंट पर वोटिंग हुई है वो भी पूरी तरीके से सर्वसम्मति से पारित हुई है। यानी कि विपक्ष ने जो अपनी बात रखी है अमेंडमेंट के माध्यम से, उनको वो सिर्फ सदन में उसको रेखांकित करने के लिए और अपने पक्ष को रखने के लिए कर रहा है। और इस बिल को वो मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से ही पारित करने के मूड में दिखाई दे रहा है। अश्विनी जी ऋषि, अगर देखें तो पूरे बहस के दौरान हमने देखा कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने, सत्ता पक्ष ने अपना पक्ष रखा, विपक्ष ने अपनी कुछ मांगे रखी, अपनी इस वोटिंग प्रक्रिया में, मत विभाजन की प्रक्रिया में हम देख रहे हैं वो संशोधन की भी कोशिश कर रहे हैं अनेक राजनीतिक कारणों से और राजनीतिक हितों से। लेकिन जिस तरीके से हमने लोकसभा में देखा, लोकसभा में भले ही एमआईएम के 2 सांसदों ने विरोध किया, लेकिन उच्च सदन एक नई उच्च परिपाटी और नए उच्च संवैधानिक मूल्यों की भी स्थापना कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि विधेयक के विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ना, जो भी राजनीतिक दलों की अपनी चिंताएं या फिर जो भी अन्य बातें रहीं जो बहस के दौरान दिखी, उनमें प्रमुखता से ये रहा कि ऑनरेबल मेंबर्स, सब्जेक्ट टू करेक्शन, आईज 213, नोज 1, abstain 0. The clause 3 is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Clause 4 stands part of the bill. There are 12 amendments. Number 4 by Shri Santosh Kumar P. Are you moving? Moving. Number 14 by Shri Dipender Singh Hooda. समाज की महिलाओं को भी आरक्षण मिले सर। Number 25 to 27 by Dr. John Brittas. The mic. Yeah, that's right. There should be mic for me when I am moving, sir. Okay. Yeah, there's Yes. mic here. Sir, I am moving, sir. What is sir? Number 33 by Shri K.C. Venugopal. I am moving for OBC. Number 38 to 40 by Shri Vinod Vishwam. Moving or not? Sir, mic. I move it for the OBC rights. Sir, you have to say either you move or you don't move. Sir, I move it for the OBC rights. No, only moving. Sir, I move it for the OBC rights. Very sad. We can't follow the rules. Number 55 and 56 by Professor Manoj Kumar Jha. Are you moving? Yes or no? Sir, moving for OBC subaltern politics. A professor, again a student. Number 67 by Professor Ram Gopal Yadav.
Moving, You are sir. my last hope. Moving, sir. Okay, thank you. Amendments moved. I shall first put the amendments moved by Santosh Kumar B to P2 vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Dipender Singh Hooda to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Shri K.C. Venugopal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Shri Binoy Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Professor Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Professor Ram Gopal Yadav to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Honorable members, before I take up clause 4, I request the Secretary General to once give the procedure. There seem to be some minor situations which can be corrected. Honorable Secretary General. You see, Mr. K.C. Venugopal, listen to me. Our members are adapting to technology. If they are given some guidance for a minute or two, our number there will be complete. Sleep will not be needed. Go ahead. Secretary General. Mr. Secretary General. Sir, with your kind permission, I'll just reiterate the process. Briefly. Kindly note that once the gong sound starts, only then you have to press the vote secure button. And having pressed the vote secure button, then you have to press either of the three, that is ayes, noes or abstain. And keep it pressed till the gong sound gets over, that is till the 10th second. Once you do that, keep both the things pressed. It will be registering the correct vote. Thank you. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. ये संवैधानिक नियम है कि उन पर मत विभाजन किया जाता है। इस समय संविधान संशोधन विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा जा रहा है, उसके दो उपबंध क्लास 2 और क्लास 3 सदन द्वारा एडॉप्ट कर लिए गए हैं। अब क्लास 4 पर इस समय मत विभाजन की प्रक्रिया है। क्लास 4 ये बताता है कि संविधान के अनुच्छेद 332 में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 332 में अनुच्छेद 32A सबसेक्शन 1, 2 और 3 जोड़े जाएंगे। संवैधानिक संशोधन विधेयक
ये बताता है कि राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है, 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए करता है। अनुच्छेद 332A में 3 उपबंध जोड़े जाएंगे जो कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद संविधान का भाग बनेंगे। अनुच्छेद 332A ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये निर्धारित किया जाएगा कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। इसका उपबंध 2 ये कहता है कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी इसमें 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं लगातार राज्यसभा से। ऋषि, अगर देखें तो जिस तरीके से क्लॉज बाई क्लॉज हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट टू करेक्शन भी है और जो संशोधन अन्य सदस्यों द्वारा लाए गए हैं वो ध्वनिमत से खारिज भी हो रहे हैं। तकरीबन 12 संशोधन लाए गए थे अलग अलग सदस्यों द्वारा। क्लास 4 पर लोगों ने उस समय कहा कि ओबीसी राजनीति के लिए या ओबीसी के हितों के संरक्षण के लिए जो हमने टिप्पणियां सुनी, किस रूप में देखते हैं? इस पर विशद बहस भी हुई, लेकिन संविधान में अब तक के आरक्षण की व्यवस्था को देखते हुए केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ही सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इस मुद्दे पर क्या विपक्ष कोरी राजनीति मात्र कर रहा है? ऋषि, देखिए अश्विनी, जहाँ तक इस पूरे मसले पर विपक्ष की जो रणनीति की अगर हम बात करें और जो उनके द्वारा मुद्दे उठाए गए उसकी बात करें तो निश्चित तौर से उन्होंने 2 ही मुद्दों को हाईलाइट ज्यादा किया है। एक तो इसके तत्काल लागू करने का और दूसरा इसमें ओबीसी आरक्षण को समाहित करने का। जहाँ तक अभी हमने देखा है कि क्लॉज 3 अभी जो पारित हुआ है उसमें सिर्फ 1 वोट विरोध में गया है। यानी कि विपक्ष के सांसदों के द्वारा जो संशोधन की प्रक्रिया अपनाने के लिए उन्होंने वोटिंग में वो शामिल हुए हैं उसमें वो अपने ही अमेंडमेंट के पक्ष में नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई है। दूसरी बात यह है कि इस समय जिस क्लॉज 4 की इस समय वोटिंग चल रही है और अभी तक जो शुरुआती आंकड़े हमने देखे थे जो स्क्रीन पर, वो आंकड़े भी इस अमेंडमेंट को नेगेट करने वाले हैं, यानी कि इसके पक्ष में अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि अभी सब्जेक्ट टू करेक्शन में देखना होगा कि जो फाइनल टैली है वो क्या होती है और किस तरीके से इस क्लॉज को लेकर विपक्ष अपनी वोटिंग में अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्लॉज है और इसमें आरजेडी की तरफ से और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, सभी की तरफ से अमेंडमेंट इसमें पेश किया गया है और 12 सांसदों की तरफ से ये अमेंडमेंट अभी तक रखे गए हैं और इस पर जो है इस समय वोटिंग का जो परिणाम है वो आना बाकी है और इस समय सभी इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पर भी स्थिति को स्पष्ट किया है क्या है। लेकिन अभी तक जितने भी हमने क्लॉज पर वोटिंग देखी है वो पूरी तरीके से सर्वसम्मति की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ हमने देखा है क्लॉज 3 में 1 वोट उसके विरोध में गया। जी ऋषि, एक चीज मैंने और पूछा कि जिस तरीके से ऑनरेबल मेंबर्स, सब्जेक्ट टू करेक्शन, ayes 214, noes 0, abstains 0. Clause 4 is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Clause 5 stands part of the bill. There are 40 amendments. Number 5 to 9 by Shri Santosh Kumar P. 15 and 16 Shri Dipender Singh Hooda. Number 17 by Shrimati Priyanka Chaturvedi. Number 28 to 31 by John Britas, Dr. John Britas. Number 34 by Shri K.C. Venugopal. Number 41 to 44 by Shri Binoy Vishwam. 46 by Shri Ilamaram Kareem. 47 by Shri A.A. Rahim. 57 to 64 by Professor Manoj Kumar Jha. Number 68 by Dr. V. Sivdasan. 69 by Shri Sayyid Nasir Hussain.
70 by Shri Dheeraj Prasad Sahu, 71 by Srimati Rajni Ashok Rao Patil, 72 by Dr. Ami Yajnik, 73 by Srimati Fulo Devi Netam, 74 by Srimati Ranjit Ranjan, 75 by Shri Rajmani Patel, 76 Srimati J.B. Mather Isam, 77 by Shri Vivek K. Tanka, 78 by Dr. L. Hanumanthaya, 79 by Shri Neeraj Dangi, 80 by Srimati Mawa Maji. Amendment moved. I shall put the amendments moved by Shri Sandosh Kumar P to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendments moved by Shri Dipendra Singh Hooda to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Nothing will go on record other than this. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendment moved by Srimati Priyanka Chaturvedi to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendment moved by Shri K.C. Venugopal to vote. Those in favor will please say aye. You are a senior man. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Shri Binoy Viswam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Ilama Ram Karim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri A. Rahim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendments moved by Professor Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negatived. I shall now put the amendments moved by Dr. V. Sivdasan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Shri Syed Nasir Hussain to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Dheeraj Prasad Sahu to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Srimati Rajni Ashok Rao Patil to vote. Those in favor will please say aye.
Those in favor will please say aye. Good. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. Ami Yaznik to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Srimati Phulo Devi Netam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Srimati Ranjit Ranjan to vote. Those in favor will please say aye. Nothing will go on record. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Srimati Shri Rajmani Patel. Shri Rajmani Patel to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Srimati J.B. Mathera, Assam, to vote. Those in favor will please say aye. Okay. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Vivek Ketankha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved. I go by procedure. You better do your homework. I shall now put the amendment moved by Dr. L. Hanumantiya to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Neeraj Dangi to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Srimati Mahua Maji to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now, honorable members, put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. Even this is subject to correction. And mind you, everyone is subject to correction. Even you are subject to correction. We have to try.
इस समय इतिहास रचता हुआ हम देख रहे हैं राज्यसभा में मत विभाजन हो रहा है नारी शक्ति वंदन विधेयक पर, जिसमें सर्वानुमति बनती हुई दिख रही है। दलगत राजनीति से इतर सभी राजनीतिक दल इस महत्वपूर्ण विधेयक पर एकमत होकर इस समय मत विभाजन की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। संविधान संशोधन विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक के रूप में जाना जाता है, इस पर मत विभाजन की प्रक्रिया लगातार जारी है। संविधान संशोधन विधेयक के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को सब्जेक्ट टू करेक्शन 214 मतों से सर्वानुमति से अब तक एडॉप्ट किया जा चुका है, स्वीकार किया जा चुका है। और अब इस संविधान संशोधन विधेयक के उपबंध 5 पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस संविधान संशोधन का उपबंध 5 ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके 334A 1, 2 और 3 3 उपबंध जोड़े जाएंगे। और मुख्यतया ये संविधान के अनुच्छेद 334 में ये प्रावधान किया जाएगा कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और साथ ही साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो महिला आरक्षण विधेयक का ये प्रावधान किए जा रहे हैं, अन्य उपबंधों में संशोधन करके, जो कि अनुच्छेद 332 और 330 में किए गए हैं, इनको डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद, जो कि अगली जनगणना के बाद सुनिश्चित की जाएगी और अगले 15 वर्षों तक इसे सुनिश्चित किया जाएगा। अनुच्छेद 334A में 1, 2 और 3 सब क्लॉजेज जोड़ के ये उपबंध किए गए हैं, जो कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से स्वीकार करते हैं इस संविधान संशोधन विधेयक में, और आरक्षण की इस अवधि को 15 वर्षों के लिए निर्धारित करते हैं। और साथ ही साथ ये बताता है कि एक रोटेशन की प्रक्रिया के तहत, जो कि क्लॉज 3 में जोड़ा गया है, रोटेशन की प्रक्रिया के तहत ये आरक्षण, महिला संबंधी आरक्षण सभी लोकसभा की सीटों पर, राज्यों की विधानसभाओं पर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं को दिए जा रहे आरक्षण के संबंध में ये उपबंध किए जाएंगे। यानी कि परिसीमन के बाद, जो कि अगली जनगणना के बाद परिसीमन होगा और उसके बाद अगले 15 वर्षों तक। और इसी उपबंध में ये व्यवस्था की गई है कि अन्य जब भी संसद इसे उचित समझे, इसका विस्तार संसद द्वारा भी किया जा सकता है। ये क्लॉज 2 में दिया गया है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, हमने देखा कि तकरीबन 214 का वो आंकड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वानुमति है, विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए और सदन में नेतृत्व देने के लिए उपस्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन भी किया और आभार भी व्यक्त किया। रिजल्ट ऑफ डिवीजन सब्जेक्ट टू करेक्शन, ayes 214, no 0, abstain 0. Honorable members, clause 5 is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Clause 6 stands part of the bill. There are 3 amendments. 10 and 11 by Shri Santosh Kumar P. 45 by Shri Binoy Vishwam. Are you moving, sir? Both of you? Excellent. Amendments moved. I shall first put the amendments moved by Shri Santosh Kumar P to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Shri Binoy Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now.
We will discuss changes after this, tomorrow, day after, we'll discuss. सीधी तस्वीरें राज्यसभा से, जहां पर हम लोकतंत्र की जननी भारत के उच्च सदन में इतिहास बनता हुआ देख रहे हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर इस समय उपबंध दर उपबंध क्लास वाइज इस समय मत विभाजन की प्रक्रिया लगातार जारी है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक के रूप में जाना जाएगा, इसमें 6 उपबंध हैं। इस समय 5 उपबंध सर्वानुमति से एडॉप्ट किए जा चुके हैं, अंगीकृत किए जा चुके हैं, वो जो कि संविधान संशोधन विधेयक का भाग बन चुके हैं। और उपबंध 6 पर इस समय मत विभाजन की प्रक्रिया जारी है। उपबंध 6 ये कहता है कि अमेंडमेंट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट एक्ट 2023 shall not effect any representation in the House of People, the Legislative Assembly of the States and Legislative Assembly of the National Territory of Delhi until the dissolution of the House of the People and the Legislative Assembly of the State and the Legislative Assembly of the National Capital of Delhi, as the case existence and the commencement of this act। यानी कि जब तक इस संविधान संशोधन विधेयक के नोटिफिकेशन के बाद ही यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में आरक्षण की प्रक्रिया तब लागू होगी जब यह संविधान संशोधन विधेयक पूरी तरीके से नोटिफाई होकर, इनैक्ट होकर, यानी कि इसे जब जारी किया जाएगा और तभी इस पे ये इनैक्ट होगा, तभी ये लागू होगा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो कि संविधान संशोधन विधेयक में वर्णित भी की गई है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया और अगले सेंसस के बाद जब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया, परिसीमन की प्रक्रिया अगली जनगणना के बाद होगी, तो यह पूरा का पूरा अधिनियमित करके इसे लागू किया जा सकेगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि इतिहास रचा जा रहा है। कल लोकसभा में 454 मतों से प्रचंड बहुमत से इसे पारित किया गया और आज उच्च सदन ने भारतीय संसदीय परंपरा को और एक उच्चता प्रदान करते हुए सर्वानुमति से, बगैर किसी विरोध के, सर्वसम्मति से इस विधेयक के प्रत्येक उपबंधों को अंगीकार किया है, उसे अडॉप्ट किया है। इस समय 128वें संविधान संशोधन विधेयक के क्लास 6 पर मत विभाजन की प्रक्रिया जारी है। इसके पहले के 5 जो उपबंध हैं उनको सदन ने स्वीकृति दी है और विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं राज्यसभा से। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने देखा कि उपबंध और उपबंध जो कि संवैधानिक बाध्यता भी है, संवैधानिक प्रक्रिया भी है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं राज्यसभा में, सदन के नेता पीयूष गोयल, और साथ ही साथ जो हम एक आम सहमति देख रहे हैं, जो हमने मौन स्वीकृति देख रहे हैं, भले ही अलग अलग संशोधन लाए गए हों, क्लास 6 में 3 संशोधन लाए गए जो ध्वनिमत से खारिज हो गए, लेकिन एक सहमति है इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन विधेयक पर इस समय जो अलग अलग जो उपबंध हैं, जो क्लॉजेस हैं, उसके ऊपर जो वोटिंग चल रही है, इस वोटिंग से भी हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इस समय जो पूरी की पूरी जो सभा है इस बात के लिए सहमत हो चुकी है कि हमें इस विधेयक को हर हाल में बिना किसी विवाद के पारित करना है, और इसी वजह से उन्होंने अपना पक्ष जरूर रखा है विपक्ष ने, जिसमें कि उन्होंने 2 पक्षों को सामने रखा चर्चा के दौरान भी और अमेंडमेंट के माध्यम से। बस एक सेकंड रुको। सब्जेक्ट टू करेक्शन, आईज 213,
Noes 0, abstain 0. Clause 6 is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Clause 1 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 1, Shri Santosh Kumar P. Are you moving? Not moving. Not moving. One second. Not moving. Once again. Not moving. Again. He is not moving. Number 18, Dr. John Britas, moving. Government implement in 2024. Yes or no? Not sir, mic देना sir. Mic देना sir. Sir, without mic, how can not moving expect the government implement in 2024 elections? Yeah. So not moving. Number 35 by Shri Binoy Viswam. Yes or no? No. It's come. Sir, I hope that the government will implement the bill immediately. I don't move it. I don't move it. So none of the amendments has been moved. I shall now put clause 1 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Division. Lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. I think at the end of it, they will get it correct. सीधा प्रसारण राज्यसभा से, जहां पर नारी शक्ति वंदन विधेयक पर मत विभाजन की प्रक्रिया लगातार जारी है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसका क्लॉज 1 ये कहता है कि एक्ट में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट एक्ट 2023। जैसा कि हमने कल देखा कि लोकसभा में उपबंध 1 में संशोधन करते हुए, जो कि उपबंध 1 होता है 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि मूल विधेयक में था, उसमें संशोधन करते हुए ये प्रावधान किया गया था कि इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तौर पर जाना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा सदन में भी की थी और ये नामकरण भी उन्हीं की देन है। हमारे साथ ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं। ऋषि, अगर देखें तो सामान्यतः ये परंपरा है कि 123rd, 124th, 128th अमेंडमेंट एक्ट, इस तरीके से संविधान संशोधन विधेयकों को जाना जाता है। जैसे कि 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक हम जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक को उन्होंने नामकरण भी किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। उसी पर मत विभाजन की प्रक्रिया चल रही, जो कि अभिन्न अंग बनेगा आपसे थोड़ी देर में इस विधेयक का। किस तरीके से एक भावनात्मक सम्मान, एक अभिव्यक्ति भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब ये जाना जाएगा, क्योंकि हमारी परंपरा रही है नारी शक्ति की पूजा, नारी शक्ति की अभ्यर्थना, नारी शक्ति का वंदन, और वो कानूनी तौर से आज लोकतंत्र की जननी भारत उसका नामकरण भी कर रही है एक अधिनियम के तौर पर। ऋषि कुमार। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक इस तरीके की जो अभिव्यक्ति है दोनों सदनों के द्वारा, इसको हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान के तहत जो हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है,
आज उसकी प्रगाढ़ता हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में सभी पक्षों को एक साथ लेते हुए हमारे दोनों सदनों से ये प्रावधान करने जा रहा है। अमूमन किसी भी, जैसे कि आपने बताया कि जो संशोधन होते हैं संविधान का संशोधन, वो 1 और 2 या उस तरीके से नंबरिंग में किए जाते हैं, लेकिन इस संशोधन का नाम ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम करने का जो प्रण लिया गया उसको स्वीकार करना निश्चित तौर से एक सर्वसम्मति की जो पूरी की पूरी दास्तां है उसको बयां करता है कि जब हम किसी भी मुद्दे पर कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं और राजनीति से इतर जब सर्वसम्मति की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके की सर्वसम्मति हम देख पाते हैं। और ये इसी वजह से है क्योंकि हमारा जो मैच्योर्ड लोकतंत्र है, जो एक परिपक्व लोकतंत्र है, उसकी ये मिसाल है कि हम अवरोधों के बिना, विरोधों के बिना भी दोनों सदनों में अपनी अपनी सियासत होने के बावजूद भी एक ऐसा पहलू आए जब जिसमें कि सर्वसम्मति हो, वो हम करके दिखाते हैं और ये इस समय किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि कुछ ही देर में जब इसका परिणाम आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये परिणाम पूरी तरीके से सुखद होगा, क्योंकि अब तक जितने भी क्लॉजेज आए हैं उसमें विपक्ष ने किसी भी तरीके का कोई भी वोटिंग के माध्यम से नहीं बताया। सब्जेक्ट टू करेक्शन, ayes 214, noes 0, abstain 0. Clause 1 is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तौर पर भविष्य में जाना जाएगा, इस पर मत विभाजन की प्रक्रिया राज्यसभा में चल रही है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके उपबंध 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सर्वानुमति से, सर्वसम्मति से मत विभाजन के बाद एडॉप्ट किए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, उस समय मत विभाजन के परिणाम जानने के लिए रुकना पड़ा था। हम ये कह रहे थे कि विशेष नामकरण किया जाना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तौर पर इस कानून का भविष्य में जाना कितना बड़ा हमारी परंपरा के साथ साथ हमारी नारी शक्ति को दिया जाने वाला सम्मान है। संवैधानिक रूप से उन्हें अधिकार तो मिलेगा ही, लेकिन जो हमारे पुरखों ने समानता की बात की थी, समान अवसर की बात की थी, गरिमापूर्ण जीवन की बात हमारी प्रस्तावना करती है, उसको ये कितना चरितार्थ करेगा धरातल पर? ऋषि, निश्चित तौर से सुनी, ये एक ऐतिहासिक पल है, जबकि अब हम अगर हम बात करें इस विधेयक पर सिर्फ और सिर्फ जो इनेक्टिंग फॉर्मूला है, यानी कि जो टाइटल है इस विधेयक का, और यानी कि इस वोटिंग के माध्यम से अंतिम वोटिंग है और इसके बाद माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा कि ये बिल पारित हो गया है। इस पूरी की पूरी कवायद में हमने देखा है कि पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से हमने क्लॉज बाय क्लॉज और जो अमेंडमेंट्स मूव किए गए उनको एक्सेप्ट करते हुए हमने वोटिंग की, और उस वोटिंग में किसी भी तरीके का अवरोध या विरोध नहीं देखने का मिलना। और खासतौर से जो आपने बात कही कि अब हमारा जो 128वां संशोधन है वो नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से जाना, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की एक ऐसा चरम है जिसको आज हम फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। और इस ऐतिहासिक पल में हम कह सकते हैं कि हमने सभी राजनीतिक और वैचारिक धाराओं को
परे हटकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें हम महिला आरक्षण को एक ऐसे स्वरूप में देश के सामने रख रहे हैं जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी विरोध और अवरोध नहीं है। ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है और इस फैसले के साथ हम ये कह पाएंगे कि हमारी जो आधी आबादी है, देश की संपूर्ण आबादी के लिए उसकी जो भूमिका होगी एक सशक्त भूमिका के रूप में, वो दोनों तरीकों से दिखाई देगी। एक तो केंद्र की जो सियासत है और जो राज्यों की सियासत है उसमें, और इसमें जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें 33% आरक्षण के माध्यम से हमारी आधी आबादी इस पूरे मुल्क के लिए जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और जो परंपराएं हैं उनको सशक्त करते हुए दिखाई देगी। और इसी वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि हम एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उन पहलुओं के गवाह बन रहे हैं जब इस लोकतंत्र ने ये तय किया है कि हम जब कोई फैसला लेते हैं और जिसमें सर्वसम्मति बनानी हो तो उसको किस तरीके से तय किया जाता है। आज हमने दिन भर जो चर्चाएं देखी, हमने देखा कि राज्यसभा जो उच्च सदन है निश्चित तौर से कुछ गर्मा गर्म बहस और चर्चाएं भी देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से आखिरी में प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया सदन का और धन्यवाद दिया कि किस तरीके से दोनों ही सदनों में जो चर्चाएं हुई हैं और करीब 125 से अधिक सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया है, उसका उन्होंने धन्यवाद किया। और जो उच्च स्तर की चर्चा अभी तक देखने को मिली है देश के विकास के लिए, कल्याण के लिए, और एक महती भूमिका जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो महिला आरक्षण का लेकर अब तक हमने जो इंतजार किया था, उस इंतजार का जो परिणाम है इतना शानदार हम कर पाएंगे, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। डिवीजन एनेक्टिंग फॉर्मूला एंड टाइटल सब्जेक्ट टू करेक्शन, आईज 214, नोज 0, abstain 0. The enacting formula and the title are adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Sri Arjun Ram Meghwal to move that the bill be passed. Honorable Chairman, sir, I move that the bill further to amend the Constitution of India as passed by Lok Sabha be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. जब भारत के लोकतंत्र के उच्च सदन द्वारा भी ये विधेयक पारित हो जाएगा, उपबंध दर उपबंध सभी उपबंधों पर मतदान हो चुका है और इस समय इस विधेयक को पारित किए जाने पर अंतिम मोहर लगने में बस कुछ ही क्षण बाकी हैं
केंद्रीय कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को पारित करने के लिए सदन में इसे प्रस्तुत किया है। और निश्चित तौर से अब तक के जो परिणाम मत विभाजन के दिखे हैं, सर्वानुमति से आज इतिहास लिखा जाएगा उच्च सदन में। संसदीय परंपरा एक नई उच्चता प्रदान करेगी भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा को। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, हमारे साथ राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर देखें तो बस चंद लम्हे बाकी हैं एक इतिहास लिखने में, वो इतिहास जो कि दुनिया के लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं मिसाल होगा, जब भारत अपने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में 1/3 सीट अपनी नारी शक्ति के लिए समर्पित करेगा। बस चंद लम्हे ही बाकी हैं। किस रूप में एक सर्वानुमति पूरी दुनिया को भी दिखा